अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको लाइव लिए चलेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Deputy Prime Minister of United Arab Emirates, a number of foreign affairs officials, foreign ministers of Qatar, foreign minister of Oman, Deputy Prime Minister of Iraq, and there are certain meetings scheduled with some European diplomats, my counterparts, as well as Jordan and Kuwait later today. So I think the whole objective is that this recent escalation is obviously has now significantly heightened tension in a very already fragile and volatile environment. We are doing our full diplomatic efforts and requesting all parties to de-escalate and to refrain from this process, which according to our information, just not too old, just about a week ago, Prime Minister had official visit to Austria, and we had discussion with the IAEA officials there, and the feedback was very positive. Obviously, these serious developments have taken place at a time when diplomatic efforts were underway to reach a peaceful and negotiated solution. But what triggered all of a sudden this action, and which has now engulfed almost all countries. As late as this morning, we understand that Saudi Arabia has also now, in self-defense, responded to Iran. Though there is no reported casualties, Pakistan, as soon as I landed yesterday, we had a meeting. Prime Minister chaired the meeting. The civil military leadership was there, and there was an official statement, in this regard issued by Prime Minister's office. I'm sure you would have seen that statement as well. We are concerned over a violation of the norms and international law and the age-old tradition that the heads of state and the government should have been seen targeting now. You see, post-World War II, we all know that these institutions were created to create some international, law and order, and that's why there was a UN Charter. There are certain conventions which we all are supposed to follow, but things are on ground moving very differently, which obviously is worrisome because we believe that the international law must prevail and the convention must be respected. In all these engagements, we had consistently urged that the door to dialogue and diplomacy must not be closed. Pakistan's position has been clear and persistent that all countries must abide by the principles of UN Charter and international law, including respect for the sovereignty and territorial integrity of other states, as well as international humanitarian law. In my latest conversation with Foreign Minister Abbas Araghchi on 28th of February, I have conveyed Pakistan's condemnation of the attacks and called for restraint and diplomacy and dialogue, which he positively responded. But on ground, we are seeing that things are not yet settling or easing out. In the emergency meeting of the UN Security Council held under the agenda the situation in the Middle East, held on 28th of February, Pakistan permanent representative at the UN has also reiterated Pakistan's condemnations of the attack in Iran. I have also spoken with, as I said, different foreign ministers in this regard, and I think I haven't talked to anyone who disagrees that the dialogue and diplomacy is the only way forward, not only for this region, but wherever there is any conflict. There are forums available, there are systems in place, post-World War II. So it seems to be a very, very turbulent time in the diplomatic space and diplomatic world, which we all need to work together to bring it back to the original, the agreed principles to move. Pakistan also stands in full solidarity with all our brotherly countries
and underscores the need to exercise maximum restraint. That is the message we have been giving to whosoever Prime Minister speaks, whosoever I speak, or whosoever Field Marshal Asim Munir speaks to his counterparts on the defense side. We acknowledge that the main target of Iran's retaliatory strikes were in self-defense, but Pakistan deeply regrets and condemns these strikes on the brotherly countries, including Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, and UAE, and Oman. We can't have double standard. As I said, that we were the first ones. I was in Saudi Arabia, and the moment I got this news, my office, I talked to them, and they issued more of a statement condemning it. But within no time, we then found a number of attacks, obviously in self-defense, but that compounded and complicated the situation on the ground. So anyway, they are a sovereign state, and it was their decision. They say that we have not attacked those countries, we have attacked the American base there, or their installation there. But there is still no justification because of the panic. See what's the turmoil in the entire region. We are seeing. I myself have to find ways and means to get back to the country, and the entire space in the Gulf states airspace was closed. So Prime Minister of Pakistan has expressed his deep regrets and calls to the leadership of the brotherly countries, as I said, almost all of them, Saudi Arabia, Qatar, UAE, Jordan, Bahrain, one by one, and it has been, requesting to please exercise restraint, don't react, and all this business. This last 72 hours developments are really very, very worrisome. In our outreach at the leadership level, we have called for an immediate halt to escalation through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful, negotiated resolution to the crisis. Pakistan stands ready to extend our support towards peaceful resolution of outstanding issues. Incidentally, this, if you recall, this is the second round. The last round was in June last year, when again we did our complete efforts. Oman was the mediator, and again Oman is again mediator this time. And the talks in Geneva about a week, 10 days ago were going very positive. So, our effort has been to encourage both the US and Iran to get engaged in dialogue, diplomacy, and resolve the issue. I won't walk you through the entire detail. We are privy to detail of the demands and the responses. We have been encouraging to make it a viable, a win-win for both the United States and Iran. And I think we are very close, in counseling both countries on this subject. They were both positive, and they were both forthcoming. You see the actions now. As I said, that Foreign Minister of Oman was absolutely satisfied. So was the authorities of IAEA, whom we met about 10 days ago during our official visit to Austria. So it is puzzling that what necessitated all of a sudden, a decision to attack. Anyway, Gulf countries host obviously millions of Pakistani nationals. We have a huge diaspora in almost in every country. The biggest ones are in Saudi Arabia and in UAE. So, you are already aware that in the attack in Abu Dhabi, unfortunately, one of our Pakistani, national was also martyred in that attack. Our missions in the region remain fully engaged with the diaspora and remain in close contact with local authorities for facilitation, and with our Foreign Office, constant reach out to our missions, and through the missions to the diaspora. We have also, issued advisory giving detail of all the countries and the diaspora, the way they should get in touch. The crisis management unit has been activated in the Foreign Office here, as well as our missions in the entire region. Pakistan have always supported a cessation of hostilities
upholding the international law and principles of the UN Charter, resumptions of diplomacy to find a peaceful and negotiated solution. I would like to briefly share with you that all the efforts to bring peace, in the Middle East, particularly in Gaza, Pakistan has been a contributor in all those efforts, starting from formally and I would say seriously starting from 24th of September last year on the sidelines of UNGA, where 5 Arab countries, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Egypt, and Jordan, and 3 Islamic countries, Pakistan, Turkey, and Indonesia. We call it Group of 8 Arab Islamic countries. We had very meaningful engagement with President Trump on 24th of September. That was the only thing visible on the media. The rest of the efforts which followed that meeting obviously were off media. And that's which led ultimately, because it was decided that the 8 foreign ministers of the 8 countries who had dialogue on the sidelines of UNGA with President Trump and his team, and the agenda was only one, and that was bringing peace back to Gaza, settlement of the issue, and unhindered flow of human assistance, humanitarian aid, as well as the ceasefire immediate. Although we know that it led to Sharm el-Sheikh, the peace agreement signing, followed by in Davos, where the Board of Peace, signing took place, and now 19th of February, we had Board of Peace first inaugural meeting. So all these been attended by Prime Minister of Pakistan, and I accompanied him, and I think the things were showing very positive progress. We appreciate the efforts made by all concerned, particularly 7 other brotherly countries who have made equal effort with us to bring the Gaza issue to that point. I must also share with you that UK held, I think, very timely meeting in the UN Security Council. They had presidency this month, and I was invited by my counterpart, Excellency Ebert Coopers, to attend the UN Security Council meeting, which was the day prior to the Board of Peace meeting on 19th of February. It was 18th of February, and I especially flew from Austria to attend that meeting, in New York. And our statement was very, very clear. It is on record, and it is available on the website of Ministry of Foreign Affairs of Pakistan. You can just go through and, frankly, we don't mince words. And we call spade a spade. And wherever, principal demands, we do act accordingly. We have extended relationship. We have great relationship with China. We have very good relations with the current administration of the United States. We have great relations with all brotherly countries. But I think unless we all believe and act accordingly, that the international law and the UN Charter and the conventions are to be respected and followed, I think then there will be no peace any part of the world. Maybe this time this region. Earlier, I remember last year we had the presidency in July. We on purpose selected the theme for debate, which I chaired in UN Security Council meeting, was multilateralism, peaceful settlement of disputes. And I think UK also deserves compliments by picking the almost same subject on 18th of February, the peace process in the Middle East, including Palestine. So I think these efforts need to be complemented. We should all get strengthened. We should all get united. And I'm sure the sense will prevail, and these institutions can surely work very effectively. So these are few ideas I just wanted to very frankly, because these are the latest development. As I said, the original idea was the Afghanistan, because there were some queries. The spokesperson of Foreign Office has been keeping everybody updated on weekly briefing. But then, my team asked me that I should also brief and have a sitting with you on Afghanistan. So I think, having talked about the recent
last 3-4 days developments, I would now bring you back to Afghanistan because there have been a number of queries from different missions. So I think I want to clarify our position. We surely want good, friendly relations with all our neighborly countries. And you would recall that last year I made 3 trips to Afghanistan. After 4 years of gap, since the Taliban regime came in power, on 19th of April 2025, I just had a visit of Kabul with very open heart and mind. I discussed with them their economic issues, trade issues, political issues, refugees issues, anything they wish to touch. We were very open. We debated, we discussed, we took decisions, and without losing any time, from their soil, I held a press conference which was viewed both, including Pakistan and Afghanistan. So we didn't stop there. We came back and we implemented everything we decided and promised with our Afghan friends and with the regime. There had been 2 years earlier, during PDM government, 2022-2023, when I was finance minister, we had been working with them on a railway project, Uzbekistan, Pakistan connectivity through Afghanistan, through Kharlachi. Now that has been in cold storage. As a consequence of my visit of April, they finally agreed to sign the protocol agreement between 3 countries, which was signed in July. That was my second visit in July 2025. And all the 3 foreign ministers were there. We had our transport or railway ministers with us who signed that agreement, which obviously was the kick-off of this project for the connectivity of Pakistan to the Central Asia, and through Central Asia even to the Europe and China and other parts of the world. So that was a very positive move. That was followed by a trilateral meeting in August last year, where my great friend, Foreign Minister Wang Yi, myself, and Mr. Muttaqi held the meeting, trilateral meeting. We have a trilateral forum, China, Pakistan, Afghanistan. And that was again very positive meeting. We had all the best. By the way, in all these meetings, Pakistan ask has been only one from Afghanistan, not a long list of wish list. And that is, please do not allow your soil to be used for terrorism against any neighboring countries, particularly Pakistan. This is the only ask, right in April, July, and August. And unfortunately, that has not been complied with. I know they had issued religious fatwa, but we call it religious, obviously, decree. And there was about 1,000 scholars there. There was the Chief Justice of Afghanistan. There was the Prime Minister of Afghanistan. And they said, we will not allow soil the first time. This was just few months back. But there is no very verifiable actions which should have actually endorsed that fatwa is being implemented. And, the things have been going fairly hot, in the recent past. And, we also elevated our diplomatic relations following my 3 visits, to the ambassadorial level, although the regime is not recognized. It was at the desire of our neighborly, friendly country. Signing of framework agreement, as I said, took place. Early harvest programs are agreed. These are few things I'm just recounting for your memory. Afghan origin, Afghan-bound trucks and containers to and from India, despite our war in May 2025, upon the request of Afghan side was facilitated. The decision of to extend CPAC to Afghanistan was agreed. This was during a trilateral meeting, Foreign Minister Wang Yi, myself, and to Kabul in August. Convening of Joint Coordination Committee meeting of the border security issues. That was also grant of 4,500 scholarships to Afghan students in various fields, including medicines,
engineering and social science under the Lama Iqbal Scholarships Program. Despite of humanitarian relief assistance following the earthquake in eastern Afghanistan on 31st of August, this was again, an action we took. We allowed a liberal visa regime enabling Afghans to visit Pakistan legally for education, health, business and family links. I would also like to highlight that Pakistan has played a proactive role in all important regional and international forums on Afghanistan, such as Quad, replicate this group, Trilateral Foreign Ministers Dialogue, Moscow format, OIC contact group, SCO and neighboring countries format. So all this we have been supporting. And as I said, what is our ask or demand? Only one. Please do not allow the TTP, the BLA, the Majid Brigade, which have been proscribed by many countries, that to allow them or to provide the facilitation. This is the only issue we have. And as long as it is handled, it is removed, we have no issue with Afghanistan. We always have been, wishing to have, best of the best relations with all the neighbors, including particularly Afghanistan. As part of these initiatives, Pakistan has consistently called for addressing Afghanistan's multifaceted challenges, in particular humanitarian and economic situation in the country, which have a direct impact on Pakistan. So with these background, unfortunately in October, serious violations took place. Every week, our brave armed forces have to lift, the bodies of their soldiers and the officers, which is certainly not acceptable under any circumstances. We have the capacity, we have the will, we have, the kinetic capability to handle it in a very meaningful way. But we have been exercising extreme restraint and doing minimum reaction to what has been happening. What you have seen is absolutely, minimum in you can say, self-defense under Article 51 of the UN Charter, because we are the believer. And since we are sitting in the UN Security Council for a 2-year term as non-permanent member till 31st of December this year, so I think we exercise more care to respect the UN Charter and all these things. So unfortunately, Pakistan had, as a consequence of the repeated, by the way, you must recall also that after October, serious violations and attacks, there were rounds, our brotherly country, Qatar, they requested us to allow diplomatic engagement. We sent our team, our defense minister, with the team visited Qatar. There were dialogues, but the outcome was nothing, nil. Then it was followed by a dialogue in Istanbul. The outcome was nil. And then even Saudi Arabia. So we had now no choice but to launch Operation Ghazbul Haq in response to repeated terrorist attacks by Fitna al-Khawarij and Fitna al-Hindustan against Pakistan emanating from Afghanistan soil, as well as the recent unwarranted and provocative actions by Afghan Taliban regime on the night of as late as 26th of February. So you see, this has led us, has forced us to now take it, now seriously. And some high-profile terrorism incidents include the suicide attack on judicial complex in Islamabad in November 2025, coordinated assault by BLA elements across the entire Balochistan province in January 2026, a suicide bombing on an Emarga in February 2026, which alone took, shahadats of 31 civilians and injured 170 innocent, people who were praying there, and recent terrorist incidents in Bajor, Bannu, and Khyber Pakhtunkhwa province. Now, this is the background. This is why we had now no choice but to launch, this Ghazbul Haq operation. Pakistan has conclusive evidence that the recent acts of terrorism in Bajor and Bannu, which is very recent, last a couple of weeks, were perpetrated by TTP at the behest of their Afghanistan-based leadership and handlers.
Responsibility for these attacks was claimed by the TTP already and their affiliates as well as ISKP. Prior to the launch of operation, but what I said, Ghazbul Haq, Pakistan carried out intelligence-based selective targeting of 7 terrorist camps and hideouts on 21st February 2026. When I fixed this meeting, I just wanted to share all these facts with the diplomatic corps. You're all friendly countries, so that it should be on your record and you would be sharing it with your capitals. So, as I said, that the events have overtaken now in the last 3-4 days. Pakistan actions were proportionate, minimum, and measured with careful planning in order to make sure that the only terrorist camps and hideouts are hit and civilian population should not be targeted and should be saved. In response to repeated terrorist attacks by Fitna al-Kharij and Fitna Hindustan against Pakistan from the Afghan soil, as well as the latest, as I said, the provocative actions by the Taliban regime on 53 locations across 15 sectors. 53 locations across 15 sectors in Khyber Pakhtunkhwa province on the night of 26 February. Now this is horrifying and this is totally lunatic that it's like going mad. So this 26th of February, 53 locations targeting 15 sectors in Khyber Pakhtunkhwa province is totally no-go for Pakistan. Pakistan initiated this Operation Ghazbul Haq in self-defense, carrying out precise and targeted operations against 7 terrorist camps and hideouts belonging to the TTP and ISKP in Afghanistan. Our actions, as I said, were very careful, and in this operation, initially 22 locations in Kabul, Kandahar, Paktia, Nangarhar, Khost and Paktika were subjected to aerial targeting, and all these targets were military installations which were carefully selected based on our intelligence. As a result of Pakistan befitting response to Afghan Taliban's regime against Pakistan, valiant forces targeted 37 locations in Afghanistan. 415 Taliban's regime personnel and Khawarij were eliminated. 182 posts completely destroyed, 31 posts captured, 185 tanks and APCs destroyed, 46 locations targeted across Afghanistan, as I stated earlier. Pakistan's 12 brave soldiers embraced Shahadat, martyrdom, 27 injured, and 1 is missing in action. Our position is still, we desire peaceful, stable regional integration and prosperous Pakistan. We are well-wisher and we will remain well-wisher. We have all the sympathy for the people, brothers and sisters in Afghanistan. But this is something which we have done against those elements who have been unfortunately sponsored or patronized by the Taliban regime in Afghanistan, and as a consequence, we have been facing all these terrorist activities, but still demonstrated patience for a very long time. Excellencies, ladies and gentlemen, we have repeatedly urged the Taliban regime to take immediate, concrete and verifiable measures against all terrorist groups operating from Afghan soil, including TTP, BLA and their affiliates. Regrettably, the Taliban regime has failed so far to undertake any concrete and verifiable actions against these groups, despite our, repeated assurances which have been given to Pakistan at different levels, including to me. Despite Pakistan's numerous goodwill gestures and attempts to engage Taliban regime through mediation process, the regime remains unwilling to prevent in a serious way repeated terrorist attacks emanating from this soil. As I said, that which is a very strong instrument in Islam, what we call fatwa, the religious decree, and that too in the presence of the 1,000 prominent scholars, few months back. But seems to be that on ground, hardly any action.
due to active support and facilitation extended by the Taliban regime to TTP, BLA, and their affiliates, terrorist attacks against Pakistan have increased manifold, as I've given you all these statistics. Our civilian population, military and law enforcement personnel, places of worship and infrastructures all have been targeted. I have quoted you all the detail what has happened. The fact is that Afghanistan, unfortunately, currently is a safe haven for multiple regional and international terrorist organizations, which has been well documented in the reports of the UN Security Council Analytical Support and Sanctions Monitoring Team. Afghan Taliban's regime serves as a master proxy of forces to destabilize Pakistan and the entire region. Terrorist organizations such as Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan and others work in close coordination and under patronage of the Taliban regime. It is also a well-established fact that TTP, whose entire leadership is based in Afghanistan, continues to operate with impunity from their soil, and they have yet not been kicked out from their country. Pakistan expects the international community to condemn the expanding terrorist threat which is emanating from Afghanistan and which is destabilizing activities in the entire region. We hope that the international community will play a constructive role by urging Afghan Taliban regime to uphold its commitment under the Doha Agreement not to allow its soil to be used in practice by terrorist organizations against the regional countries and the neighboring countries. Pakistan is a strong proponent of regional peace and stability, but the protection of Pakistan's sovereignty and the safety and security of our people is the foremost priority of the government of Pakistan and the state. Pakistan reserves the right to take all appropriate actions in its self-defense and to protect its citizens in accordance with the international law, including the UN Charter. So I'm extremely grateful that you have the inconvenience of adjournment of the yesterday's sitting, and thank you for making it today. Thank you for your time, and I'll be happy to answer any questions or any clarification if somebody wants to see. Thank you. The need for diplomacy and restraint, the conflict in the West, in the Middle East, Iran and so forth. Would that suggest that the avenues of diplomacy and negotiation with respect to what is going on with your other neighbor? Sure. Well, first of all, we have the whole idea. We would have actually met 3-4 days ago because of my unavoidable participation in the OIC, and that again was for the cause of peace in the Middle East. I had to go, so that's why. So first of all these actions, as I said, they have been great restraint, in a very measured way, and at reaching a point where no more space was available to remain totally quiet and keep taking whatever is coming on our side. So we had to exercise, the actions we have taken, but we are still, frankly speaking, as I said, that we have the capability and capacity to deal with it in a massive manner. But we respect, the dialogue and diplomacy route. We gave it a chance. I won't walk you through to Qatar Ambassador, His Excellency is here, that the fanatic calls I had in October when they did all this massive, terrorist activities in Pakistan, we were ready to actually go ahead and then, put it, in a right, respond in a right manner. But we were requested by friendly countries, please give it the dialogue and diplomacy, as you are saying now. We gave a chance, and you saw what happened in Doha. Yeah, despite their best efforts, the problem was that there were two nexus of power,
our team would agree with something, and the other side team will go and agree and go just to get the consent or the nod, and they would come back and wriggle out. I mean, this is the experience Qatar had. Same thing happened in Istanbul, and so it's not our fault. So we still prefer dialogue and diplomacy when we are counseling the all other countries. And having during our presidency last year of UN Security Council, fixing a theme that multilateralism has peaceful settlement disputes. So we are the believers. So that is there. So your second part of the question, that since we are counseling everywhere this thing, that why not there, we are ready. But you see, it takes two to tango. We have been doing whatever we could, and I counted very few things which during my visit we agreed and we implemented, and they acknowledged in July, no other than the Prime Minister of Afghanistan, His Excellency Mr. Akhund, that whatever you promised, we appreciate that you went back and within few weeks you implemented everything. It has the trade facilities, it has the economic actions, it has the political matters, it has every subject under the refugees. So we agreed everything and we implemented. So that's best you can. But unfortunately, as I said, it takes two to tango, and they never ended. And this responsibility they have to discharge if you have to come back to a peaceful neighbor. Otherwise, we have exercised a lot of patience, and this decision has been taken as a last resort. After exercising due patience, or exercising complete restraint, so we are believer absolutely that we should go through the diplomacy dialogue route. Thank you so much for. नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे, ब्रीफिंग दे रहे थे मौजूदा सूरत हाल पर। उन्होंने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ से मुताल्लिक भी बात की है, और साथ ही साथ उन्होंने ज़ाहिर जो मौजूदा खित्ते की सूरत हाल है उस पर भी इज़हार ख़याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी है। पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहा है। पाकिस्तान इलाकाई मुल्कों के साथ राबते में है। हालिया सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। पाकिस्तान अपने तमाम सिफारती ताल्लुकात और कोशिशें बरूए कार ला रहा है। खलीजी रियासतों पर हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि खलीजी रियासतों में लाखों पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं। UAE में हमलों में एक पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुआ है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी दोस्त मुल्कों को एतमाद में लेना चाहते हैं, और अफगानिस्तान से सिर्फ एक मुतालबा किया है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दे। अक्टूबर में अफगान सरजमीन से संगीन खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं, और चीन, अमरीका और बरादर ममालिक के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सीनियर सफारतकार मसूद खान साहब हमारे साथ हैं। बहुत सी उनसे हमने बातें करनी है। एक तो ओवरऑल एक रीजन में जो हो रहा है उस पर भी बात होगी, और ऑफ कोर्स हमारा अपना एक ऑन द साइड लाइंस विद अफगानिस्तान जो स्किर्मिशेस से तो बात खैर बहुत आगे जा चुकी है, ऑपरेशन चल रहा है, बिल्कुल एक ऑपरेशन चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। मसूद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेट्स स्टार्ट विद थिंग्स एट हैंड एट होम। हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। द ऑपरेशन इज स्टिल ongoing, मतलब वो चल भी रहा है। क्या टारगेट्स हैं? व्हाट आर वी रियली वेटिंग टू अचीव हियर, बिकॉज कुछ दिन तो ऑलरेडी हो गए हैं। देखिए, इसमें पाकिस्तान ने जितने भी इक़दाम किए वो मजबूरन किए हैं। यानी अभी जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब बता रहे थे तफसील से कि किस तरीके से हम गुज़श्ता बरस और उससे पहले कोशिशें करते रहे। बाहमी सिफारती राब्तों के ज़रिए हमने उनकी क़यादत को, अफ़गानिस्तान की क़यादत को ये पैगाम दिया कि आप दहशतगर्दों की, दहशतगर्द तंजीमों की पनाहगाहें ख़त्म करें, और उसके अलावा जो है इनकी जो सरपरस्ती कर रहे हैं उस सरमाए की शक्ल में, हथियारों की शक्ल में हो, उसे ख़त्म करें। और उन्होंने एक फ़तवे का भी जिक्र किया कि जो है 1000 उलमा ने एक फ़तवा दिया था, बल्कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो है उन्होंने भी एक मरतबा फ़तवा दिया था, जो अफ़गान तालिबान के सरबराह हैं, जिनको सुप्रीम लीडर कहा जाता है। उन्होंने भी फतवा दिया था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उन फतावा के ऊपर कोई किसी किस्म का
अमल दरामद नहीं हुआ। इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि जब आप किसी मुल्क में जाके पनाह लेते हैं, जैसे अफ़गानियों ने ली थी, तो वो उसके शुक्रगुजार होते हैं, लेकिन उन्होंने ये किया है कि वो उनकी इंतकाम की सियासत है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, सिविलियंस और हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को मार रहे हैं। तो वो जो फतवा इस वक्त सुन रहे हैं और जिसके ऊपर अमल कर रहे हैं, वो दिल्ली से आ रहा है। वो नरेंद्र मोदी का फतवा है, क्योंकि वो जो गुज़श्ता बरस जो मार्का हक में शिकस्त के बाद वो उसका बदला जो है बरास्ता अफ़गानिस्तान हमसे ले रहे हैं। और हमें मालूम है, हमारी इंटेलिजेंस को मालूम है कि किस तरीके से जो उनका जासूसी नेटवर्क है उसने ख़ुद जो इनकी क़यादत है उसमें पेनिट्रेट कर दिया है, इनके बहुत से धड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोग समझते हैं कि ये जंग नहीं है, ये जंग है, यानी इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है, मगरबी सरहद से। मसूद खान साहब, अभी जो आपने ये कहा है कि हमारे पास पूरी इंटेलिजेंस के शवाहिद मौजूद हैं कि ये ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान जो कर रहा है या फिर TTP जो कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं, वो किसकी बेहेस्ट पे कर रहे हैं? इफ़ वी हैव दैट एविडेंस, व्हाई डोंट वी ब्रिंग इट टू द फोर फ्रंट, व्हाई डोंट वी शो इट टू द वर्ल्ड? माना कि इस वक्त दुनिया और भी बड़ी बिजी हुई है, एक और भी जगह जंग चल रही है, बट स्टिल हमें तो अपनी ये सारी चीज़ें सामने लानी चाहिए। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो सारी की सारी इंटेलिजेंस जो है दोस्त ममालिक, ख़ासतौर से वो ममालिक जो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, उनके साथ हमने शेयर की थी। और उसके बाद ये है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा को मुत्तले कर चुके हैं, उसके जो अहम कैपिटल्स हैं उनको मुत्तले कर चुके हैं। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। फ़र्ज़ कीजिए कि पाकिस्तान ने ये मालूमात ना दी होती, उसके बावजूद बड़ी बड़ी जो जासूसी एजेंसीज़ हैं वो भी को बहुत गौर से देख रही हैं। उसमें अमेरिका है, मोसाद है, ख़ुद जो है दूसरे जो खलीजी रियासतों की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जो इसकी शहादत दे चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2024, 2025, 2026 की वहाँ एक तालिबान कमेटी है जिसको 1988 कमेटी कहते हैं। वो तालिबान के अफ़गान तालिबान के ऊपर नज़र रखती है कि उनकी क्या सरगर्मियाँ हैं। तो उनकी ये जो 3 रिपोर्टें आई हैं उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो अफ़गान तालिबान हैं उनके बहुत से लोग जो है तकरीबन 43,000 माहाना, ये डॉलर्स में 43,000 माहाना जो है वो उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। उसके अलावा जो है उनको माली इमदाद दी जा रही है। ये तीनों जो रिपोर्टें हैं ये अवेलेबल हैं। यानी कोई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तो खैर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है कि वो दुनिया को बता रहा है कि किस तरीके से ये जो हिंदुस्तान भी उसमें इन्वॉल्व है, किस तरीके से वो जो है और ममालिक को भी इस फ़र्ज़ में अपना हिस्सा डालना होगा, बिकॉज़ पाकिस्तान तो करे चला ही जा रहा है, चाहे वो इनको अकोमोडेट करना हो या फिर अब इनके खिलाफ कार्रवाई करना हो, क्योंकि ये अभी हमारे लिए ख़तरा है लेकिन ये बाकियों के लिए भी ख़तरा ही है और ये दुनिया के लिए भी अल्टीमेटली ख़तरा ही है। अब ज़रा जो तनाज़ा चल रहा है, ज़ाहिर है सबसे बड़ा तनाज़ा ईरान पर हमला किया हुआ है इसराइल ने। अभी हम नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग भी दे रहे थे, उन्होंने साथ ही साथ खलीजी रियासतों पर जो हमले हुए हैं इनकी भी भरपूर मज़म्मत की है। फिर एट द सेम टाइम ये ऑल्सो गेटिंग द इंफॉर्मेशन कि सऊदी अरेबिया और कतर भी अब जवाबी कार्रवाइयों का सोच रहा है। क्या लगता है आपको, ईरान को अपने हमले इजराइल तक महदूद रखने चाहिए थे या फिर अब तो 2-3 दिन हो गए हैं ये सिलसिला जो GCC कंट्रीज तक फैला हुआ है ये रुक नहीं रहा है, ये रुक जाना चाहिए? बिकॉज अब यहाँ से मामला मुश्किल होता जाएगा, आपको लगता है ईरान के लिए संभालना? देखिए, अगर जंग तवालत इख्तियार करती है तो ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो उसने हिम्मत दिखाई और जिस किस्म की दिफाई क़ुव्वत दिखाई है उसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, ना खलीजी रियासतें कर रही थी, ना अमेरिका कर रहा था, ना इसराइल कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक किस्म का ब्लिट्ज़क्रीग किया है और उसके बाद पूरे के पूरे इलाका उनके हमलों की जद में आ गया है। इसके लिए इस्तेदाद की ज़रूरत होती है, दिफाई इस्तेदाद की ज़रूरत है। उसके बाद भी कि जब उनके रहबर आला को शहीद कर दिया गया था और उसके बाद उनका ख्याल था कि उनके बहुत से जो है तकरीबन 40 के करीब जो है कायदीन, अस्करी और सियासी कायदीन को कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद ये ख्याल था कि वो हिम्मत हार जाएंगे, उनका हौसला बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी भी आज सुबह भी उन्होंने तल अवीव के ऊपर हमले किए हैं। उसके बाद जो है आपने देखा दोहा के ऊपर हमला हुआ है,
फिर जो है वहाँ क्या कहते हैं कुवैत में हुआ है, दुबई में, बहरीन में हुए, सऊदी अरेबिया सारे में भी हमले हुआ है। हो रहे हैं। सऊदी अरब की एक ऑयल रिफाइनरी रिफाइनरी जो करीब है वहाँ भी हुआ। तो मैं कहता हूँ कि ये एक किस्म की एक जो सॉवरन स्टेट होती है, खुद मुख्तार रियासत होती है, जब उसके ऊपर हमला किया जाए तो उसके लिए एक मजबूरी बन जाती है। अब सवाल ये है कि उन्होंने खलीजी रियासतों के ऊपर क्यों हमले किए। उन्होंने ये बताया था क्योंकि इसमें अमेरिका की बेसिस मौजूद हैं, कतर में इनका बहुत बड़ा फ़िज़ाई अड्डा या फ़िज़ाई बेस मौजूद है जिसमें तकरीबन 15,000 के करीब लोग हैं। बहरीन में जो है इनका एक बहुत बड़ा अमेरिका का बहरी बेड़ा है वहाँ, और इसी तरीके से तमाम जगहों में जो भी यूएई बिल्कुल हैं ये एसेट्स मौजूद हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ज़ाहिर है इन मुल्कों का निज़ाम पूरा दरहम बरहम हो गया है। हम यूएई की सूरत हाल देखें, दुनिया का बिजीएस्ट एयरपोर्ट इस वक्त बंद है, लाखों करोड़ों डॉलर, हम नुकसान का अंदाज़ा नहीं कर सकते जितना ओवरऑल इकोनॉमी इसको नुकसान हो रहा है। सो कब तक ये मुबालिक भी रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करेंगे? फिर तो एवरी कंट्री इन द रीजन वुड बी इन्वॉल्व इन अ वॉर। मतलब जाहिर है हमला हुए चला जाएगा तो ये हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रहेंगे। और दूसरा मसूद खान साहब, रिस्ट्रेंट वैसे क्यों दिखा रहे हैं ये मुल्क? मतलब ये भी तो एक बात बनती है कि चाहे जो भी हो, दे आर बीइंग अटैक्ड फॉर द पास्ट 3 days। मतलब उनके टारगेट्स जो हैं वो अचीव भी हो रहे हैं, बहुत सी एयर डिफेंस उसमें भी उनके मिसाइल्स नहीं पहुंचे, व्हाटएवर इट इज। ये सारा मामला शुरू हुआ है, व्हाट आर दीज कंट्रीज वेटिंग फॉर नाउ? एंड एडिंग टू दैट हुमा, ये भी था ना एक्सपेक्टेशन कि जब इन पे हमले होंगे तो सब पहुंच जाएंगे कि अमेरिका से कहेंगे कि जंग रुकवाएं। वो नहीं हुआ फिलहाल तो। अच्छा, ईरान की भी ये तवक्को थी कि किसी तरीके अगर इनके ऊपर वो हमले करेंगे। ईरान ने वैसे जो है जंग शुरू होने से पहले बता दिया था कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा तो चूँकि यहाँ अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, फौजी अड्डे मौजूद हैं, तो वो इन तमाम खलीजी रियासतों के ऊपर हमला करेंगे। और खलीजी रियासतें बहुत अमेरिका के साथ वकालत करती रही, उनके ऊपर जोर देती रही हमला न करें, लेकिन उनकी वकालत नाकाम रही। वहाँ एक अजीम तर मनसूबा है जिसको इसराइल ने और अमेरिका की क़यादत ने तश्कील दिया है और वो उसको अमली जामा पहना रहे हैं। तो इस वजह से ये है कि अभी जो उनकी स्ट्रेटजी है ईरान की, वो ये है कि इन हमलों की जद में आकर जो ये खलीजी रियासतें या अमेरिका के ऊपर एक मरतबा फिर जोर डालें कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, ताकि उनके नुकसानात जो भी हो रहे हैं, जो उनके सिविलियंस के नुकसानात हो रहे हैं या उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स के नुकसानात हो रहे हैं वो कम हों। लेकिन खलीजी रियासतें अगर ये वो कह रही होंगी, बाहर सूरत कह रही होंगी, लेकिन क्या अमेरिका उनकी सुनेगा कि इसराइल उनकी सुनेगा? इसके बारे में जो है कुछ यकीन के साथ नहीं कहा जाए। मेरा ये ख्याल है कि वो उनकी नहीं सुनेंगे। एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि जो आपने देखा होगा कि सदर ट्रंप ने ना तो अपनी कांग्रेस से रुजू किया, ना अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल से रुजू किया। अभी जो इत्तलात अमेरिका से आ रही हैं उसमें उन्होंने एक ओपिनियन पोल किया है जिसमें 4 में से 1 शख्स जो है इस जंग को या इस हमले को सपोर्ट कर रहा है, 3 मुखालिफ है। यानी उनका जो इनकी अपनी रेटिंग भी जो है सदर ट्रंप की वो 25% तक गिर चुकी है इस हमले के हवाले से। और दूसरे जो है वहाँ डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस से क्यों नहीं पूछा? ये कांग्रेस का इख्तियार होता है कि वो जंग की इजाज़त दे अमेरिका के आइन के मुताबिक और वहाँ जो आम प्रैक्टिस है उसके मुताबिक। तो जो इनकी चूँकि वहाँ मेजॉरिटी है रिपब्लिकन्स की, तो इसलिए वो 100% जो है इत्तलात आ रही हैं कि वो सदर ट्रंप के साथ है। लेकिन फॉर द रिकॉर्ड जो डेमोक्रेट्स हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं ताकि अगर वो शिकस्त भी हो जाए तो ये कहेंगे कि इस लम्हे, इस वक्त जब ये हमला हुआ था तो उनकी क्या राय थी, और उन्होंने सदर ट्रंप से या अमेरिका के सदर से ये सवाल किया था कि आपने क्यों कांग्रेस से नहीं पूछा जो आइन का तकाजा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो असल मसला है कि अमेरिका क्यों लौटेगा। आपने एक सवाल ये भी पूछा था कि ये क्यों नहीं हमला कर रहे वापस। आप ये देखिए, अमेरिका के 2 बहरी बेड़े, इतने कई जो दर्जन भर अड्डे यहाँ मौजूद हैं और वो हमला कर रहे हैं और इसराइल हमला कर रहा है, इतने शदीद हमले कर रहा है, तो इन रियासतों के इजाफी हमलों से क्या फ़र्क पड़ सकता है? यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और ख़ित्ते की सबसे बड़ी ताकत, उनके इश्तराक से ये हमले हो रहे हैं। तो इसमें खलीजी रियासतों को वैसे तो ये जो है आपने अभी कहा कि सऊदी अरब और कतर भी सोच रहे हैं, लेकिन वो इनमें कोई ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकते। उनकी जो है फौज। बहुत शुक्रिया आपका मसूद खान साहब। इस पे तो ज़ाहिर है और भी बात हो सकती है और कल इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में आपको दोबारा देंगे। अभी वक्त की किल्लत है हमारे पास। हेडलाइन ब्रेक लेनी है, थोड़ी देर में वापस आएंगे।
अच्छा, ज़ाहिर है हम सूरत हाल आपको बता ही रहे हैं ओवरऑल क्या चल रहा है ख़ित्ते में। दुनिया इस वक्त जंग की लपेट में, दुनिया क्या, हमारा ख़ित्ता तो ज़्यादा ही जंग की लपेट में है। हमारे नेबरिंग कंट्री ईरान पे हमला किया हुआ है, इसराइल ने, अमेरिका ने। ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ख़ित्ते में जितने ममालिक हैं वहाँ पे अमरीकी अहदाफ को निशाना बना रहा है। अच्छा, एक सवाल जो है ना वो सारे ही पूछ रहे हैं, इनफैक्ट खास तौर पे द वंस हु आर अफेक्टेड, वो ये पूछ रहे हैं कि ये अब ये जंग कब तक चलेगी। देखें, एक जो टारगेट था ना रिजीम चेंज का, मतलब उसका ऑलमोस्ट वो तो हो ही रहा है और हो भी गया है, तो हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? सिस्टम तो नहीं चेंज हुआ। हाँ, उनके जो मतलब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की शहादत की बात करें या दीगर जो क़यादत हैं, उनके बाद ज़ाहिर है एक नए स्पिरिचुअल लीडर आए हैं जिनका नाम भी हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। सो रिजीम चेंज उस तरह से नहीं हो सकी है। क्या बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, क्या IRGC हथियार डाल देगी जिस तरह ट्रंप साहब ऐलानात भी कर रहे हैं? क्या रजा शाह जो हैं वो आके इख्तिदार संभाल लेंगे? देखिए, दोनों साइडों से अब्दुल्ला ऑल्सो बिकॉज़ दोनों साइडों से देखें ना, यू हैव नॉट कम सो फार टू जस्ट कम दिस फार, मतलब अब वो तोड़ पहुंचाने वाली बात है दोनों साइडों और यही इंटरनेशनल जरीदे भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप साहब के जहन में भी इसका कोई एंड है नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है। डॉक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मदी तज्ज़ियाकार ईरान से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा, सबसे पहले तो एक बड़ा बुनियादी सवाल है जिसका जवाब सभी जानना चाहते हैं कि जंग आपको लगता है जल्द ख़त्म होगी या भी लंबी चलेगी? शुक्रिया वक्त देने के लिए। देखिए, इस जंग को महज जियोपॉलिटिकल जरब नहीं समझना चाहिए। ये दरअसल उम्मत मुस्लिमा और आलमी कुफ्र के महाज के दरमियान एक बहुत ही बड़ा फैसला कुन जंग है, और ईरान ने इस वक्त सयूनी निज़ाम और अमरीकी दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी महाज और संगर है। और चाहे ये जंग जल्द ख़त्म होगी या तवील चलेगी, हकीकत ये है कि जब किसी मुल्क की सबसे आला तरीन क़यादत को इस तरह शहीद करते और इस तरह निशाना बनकर खुली जारहियत की जाए तो उसका जवाब भी इसी सतह होना चाहिए, और ईरान पूरी सलाहियत के साथ जवाब दे रहा है। और ये जंग मामूली जरब पर नहीं रखेगी, इसकी असरात पूरे खित्ते और दुनिया तक जाएंगे। और आज तक ईरान ने अमरीका और इसराइल को सख्त नुकसान पहुंचाया है, चाहे मीडिया उसको सेंसर करे या ना करे। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने दुश्मन की फ़ज़ाई दिफा का बड़ा हिस्सा तबाह किया उनके नतीजे में, और उनके जो ड्रोन है, जंगी तैयारे, बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, फौजी अड्डे और ऑयल टैंकर उनका जो है जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे वो सब निशाना बन चुके हैं। और आपको पता हो कि अमरीका ने पस पर्दा एक यूरोपीय सफारत खाने के जरिए जंगबंदी की दरख्वास्त की, लेकिन ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक मुनासिब और पशीमान को जवाब मुकम्मल ना हो जाए जंग रुकने का कोई वजह नहीं। इसलिए जंग का दौरानिया अब ईरान के मर्जी पर है और होगा। ईरान की मर्जी पर है और होगा, आप कह रहे हैं जंग का दौरानिया। स्ट्रैटेजी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा। अमेरिका इजराइल ने जिस तरह ईरानी लीडरशिप की टारगेट किलिंग की है, दुनिया का कोई कानून, कोई रिवाज इसकी इजाज़त नहीं देता। हर तरफ से मुज़म्मत आ रही है। अब ये पॉइंट ऐसा है जिस पर ईरान को काफ़ी दुनिया की हिमायत जो है वो मिल सकती है। हाउएवर, खलीजी ममालिक पर मुसलसल हमले किए जाना, सिफारती तौर पर ये वो स्ट्रैटेजी है जिस पर हम बात कर रहे थे। आपको लग रहा है कि ये सही है, ये स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू वर्क? जी देखिए, हकीकत ये कि हमारा शहीद रहबर जो पूरी उम्मत मुस्लिमा और दुनिया के मजलूमों के गायद थे, रमज़ान महीना, माह मुबारक रमज़ान के रोज़े के हालत में अपने दफ्तर में, ना किसी बंकर में, ना किसी ज़ेर ज़मीन जगह में दुश्मन को मुकाबले करते हुए शहीद हुए। उनका खून हक की कामयाबी की अलामत है, लेकिन इस शहादत ने एक और हकीकत को भी अयान कर दिया, वो ये कि बैनुल अक़वामी कानून अब अमलन मर चुका है, क्योंकि एक खुद मुख्तार मुल्क के आला तरीन क़यादत को खुली आम निशाना बनाया गया। ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है कि इस हमले के बाद कोई रियायत नहीं होगी। और जहाँ तक खलीजी ममालिक की बात है, ईरान ने हमेशा हमसायों से दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं और 6 साल के मुसलसल जरफों में बारहा खबरदार किया कि अपने सरजमीन दुश्मन को ना दें। ईरान को किसी मुल्क के आवाम से कोई दुश्मनी नहीं, हम सिर्फ उन फौजी और इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाते हैं जो अमेरिका और इसराइल के लिए इस्तेमाल हो। माजी में भी जब भी किसी जगह हमला हुआ मुकम्मल इत्तला और हमाहंगी के साथ हुआ, लेकिन इस मरतबा ईरान अपनी दिफाई डॉक्ट्रिन में तब्दीली ला चुका है। अब अगर किसी मुल्क से ईरान पर हमला हुआ तो वो जगह फौजी हदफ बनेगी, चाहे ताल्लुकात कितनी भी अच्छा क्यों ना हो। ये हमारे लिए दिफाई मशरू है, ना ही तोसी पसंदी है, ना ही अलागाई दुश्मनी।
डॉक्टर साहब, अब ये जंग जितनी भी तवील हो, जिसका आपने कहा कि इन्हिसार अब ईरान पे है और एक यूरोपी एम्बेसी के ज़रिए अमेरिका ने पेशकश भी की थी मुज़ाकरात की, सीज़ फायर की, लेकिन वो नहीं पेशरफ्त हो सकी। किसी पॉइंट पे ये सिलसिला ख़त्म होगा, वो पॉइंट क्या होगा, ये हम आपका तज्जिया लेना चाहते हैं। जो सूरत हाल सामने है, क्या एक नया ईरान हम देखेंगे? क्या रजीम चेंज हो सकेगी? क्या कोई और बरसर इक़्तिदार होगा ईरान पे? डू यू सी दैट हैपनिंग एट द एंड ऑफ इट, या फिर नहीं? जी, देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये तस्वुर कि इस जंग के बाद ईरान अमेरिका या इसराइल के साथ किसी किस्म की हमदली इख्तियार करेगा, ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसराइल, जिस तरह का आप भी बेहतर जानते हैं, इस खत्ते में एक सरतान जैसे चीज़ है जो ग्रेटर इसराइल के नाम पर मुस्लिम ममालिक की जोग्राफियाई तोड़ चाहता है, और इसकी पूरी तारीख हमसाय ममालिक पर जारहियत से बरी है। उनके कौमी सलामती के दस्तावेज़ों में भी ये लिखा है कि खत्ते में किसी भी मुल्क को इसराइल के बराबर ताकतवर नहीं होना चाहिए। और ईरान 3000 साल तहजीब रखता है और कभी कबूल नहीं करेगा कि एक इस तरह नो कायम शुदा काबिज़ क़ुव्वत इसे चैलेंज करे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिन ममालिक ने इसराइल से दोस्ती की है, अब देखिए वो कैसे अपनी खुद मुख्तारी खो चुके हैं और मगरब की ग़ुलामी कबूल कर चुके हैं। अमेरिका भी जो शैतान बुजुर्ग है, आज इसराइल के साथ मिलकर ईरान को कमज़ोर करना चाहता है, लेकिन ईरानी कौम की आज़ादी पसंद रूह कभी ग़ुलामी को कबूल नहीं करते, और इसलिए जंग के बाद भी ईरान के मौक़िफ़ में नरमी का कोई इम्कान नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तफ़ा मोहम्मदी, ईरान से आपने हमें ज्वाइन किया है। और ईरान मतलब अगर आप हिस्ट्री देख लें, इट इज़ अ वेरी, जिसको कहते हैं ना, प्राउड कौम है। वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे कि कोई और आके उन पे रूल करे, और शायद ये अमेरिकनों को और बाकी दुनिया को भी ये बात समझ जानी चाहिए दैट दे विल फाइट टिल द वेरी एंड। इसी पे बात करते हैं मज़ीद। प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब माहिर हैं बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात के, उनसे बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वर्कले से। प्रोफेसर साहब, जब ये बहुत वाज़ेह हो चुका था कि ईरान अमेरिका के बड़े मुतालबात मान चुका है, मुज़ाकरात फ़ैसला कुन मरहले पर थे, उस वक्त अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला, और पहले जून में भी ऐसी ही सूरत हाल थी, टॉप लीडरशिप की एग्जीक्यूशन, इससे क्या अहदाफ आपको लगता है हासिल हो सकेंगे? उसमें आपको समझना चाहिए कि दो जो चीजें हैं आर नॉट कनेक्टेड। आप बहुत लोग समझ रहे हैं कि इस वजह से कि ये उनकी नेगोशिएशन हो रही थी, तो दरमियान में क्यों ये टॉप उसकी एशेलॉन में क्यों हमला कर दिया। असली बात यह है कि वो पिछले 3 हफ्ते से मौका ढूंढ रहे थे कि सारी लीडरशिप एक जगह पे हो और मौका मिले ताकि इंटेलिजेंस आए तो हमला कर दें। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे वक्त पे आया जब नेगोशिएशन अंडरवे थी, लेकिन मौका वो एक विंडो मिली है। विंडो इतनी थी, टाइट विंडो थी, तो उनको एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने एक्शन ले लिया। उनको दे हैव टू मेक ए कैलकुलेशन कि एक्शन लेके ना लें। जैसे ओसामा बिन लादेन को पकड़े के लिए मारा गया था, तो नैरो विंडो थी, उसके दरमियान में आपको एक्शन लेना था। तो अनफॉर्चुनेटली जबकि नेगोशिएशन हो रही थी, ये भी हो गया। इसका जाहिर है कि इट्स अनफॉर्चुनेट, उनके लीडरशिप को अपील करना इज अ बिग डिसीजन, लेकिन negotiations will continue. I mean, was it really intended या फिर ये वाकई unintentional थी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि it was unfortunate, क्योंकि there is a point of view कि ये negotiations were an eyewash as well. ये साइट पे इसीलिए कराए जा रहे थे ताकि उनको मौका मिले। खैर anyway that would get into a long debate. ये बताइएगा प्रोफेसर साहब कि माजी में कभी जंगें जो हैं वो शुरू करना मकबूल फैसले होते होंगे, लेकिन अब कुछ सालों में, हालिया सालों में, in this day and age बहुत कुछ बदल चुका है। नए सर्वे भी बता रहे हैं कि ट्रंप की मकबूलियत जो है, उनकी पॉपुलैरिटी को डेंट पड़ सकता है, एंड दिस मैटर्स अ लॉट आजकल की दुनिया में, और ख़ासतौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को भी। तो क्या ईरान पर हमला वाकई ट्रंप को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाएगा? उनको फ़र्क भी इस चीज़ से पड़ता है या नहीं? बिल्कुल पहुंचाएगा, लेकिन इसकी वजूहात उसके जहन में मुख्तलिफ थी। इसका डेमोक्रेट जाहिर है काफ़ी इस पर नेगेटिव कर रहे हैं कि तुमने कांग्रेस से बात नहीं की, तो आप बादशाह तो नहीं है कि जब दिल किया कर दिया। यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यू हैव टू इन्फॉर्म द कांग्रेस, तो उसने सबको बाईपास कर दिया है। तो इट इज़ अ बिट ऑफ ए ट्रम्प का स्टाइल भी है, लेकिन इसमें नेगेटिव होगा। लेकिन
तो ट्रंप ये चाह रहा है कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो लोगों को कहेगा कि देखिए सब लोग बातें करते थे, मैंने काम किया है, मैंने वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान को काम तमाम कर दिया है, तो आई एम द एक्शन ओरिएंटेड प्रेसिडेंट। तो उस पर वो कैलकुलेट कर रहा है। फिलहाल तो काफ़ी नेगेटिविटी आएगी, लेकिन जब तक इलेक्शन का वक्त आएगा, अगर वो कामयाब हो गया तो अपने आप को फिर काफ़ी वो पॉइंट बनाएगा उन लोगों के सामने कि मुझे करो, मैं एक्शन ओरिएंटेड हूँ। तो उस पर वो डिपेंड कर रहा है। वरना तो सारी बातें एप्स्टीन के बारे में हो रही थी, उसने अब चेंज कर दिया अपनी कन्वर्सेशन फ्रॉम एप्स्टीन टू ईरान। सो इसका मास्टर है ये ट्रंप ऐसी बातें करने का, डिस्ट्रैक्ट करता है आपको। सर, ईरान की बात करें बल्कि हमारे खत्ते की बात करें तो मशरिक़ वस्ता पूरा ही जंगी हालात की लपेट में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान भी इसके असरात में आ सकता है, मतलब हमारी एक अलग भी जंग चल रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ ऑल दिस, आपको क्या नज़र आ रहा है? एक नया ईरान नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस आने वाले हैं अगर वहाँ कुछ ऐसा हुआ तो? The fact is कि पाकिस्तान इज़ ए वेरी गुड प्लेस। जबकि ईरान में जो चेंज आएगी, इसमें एक तो रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और जाहिर है कि पाकिस्तान उसमें हाथ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को ज़्यादा ज़रूरत होगी पाकिस्तान के लिए कि रीजन में हम बड़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। तो एक तरफ से तुर्की, एक तरफ से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि जी हमें अमेरिका हम पे हमला कर देगा। यार कोई सोचो उसके बारे में, इसका कोई उक्त नहीं बनती इसकी। तो पाकिस्तान इज़ नॉट ए टारगेट, पाकिस्तान इज़ ए एलाई, और इस पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ये पॉजिटिव आउटकम हो सकता है इसका। चलिए लेट्स सी क्या होता है। बहुत बड़ी शुक्रिया। अच्छी बात होगी कि अगर इस सारी चीज़ में कोई फ़ायदा हमारा निकले। प्रोफेसर नईम ज़फ़र, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, अब ज़रा चलते हैं और ईरान पर आपको पता ही है कि जब हमले और सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद एहतजाज हुए हैं, और एहतजाज कल भी हुए, आज भी हुए, और मतलब बहुत से लोगों की जाने गई हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूल्स बहुत सारे बंद थे, पेपर्स भी कुछ कैंसिल हुए हैं। काशिफ मुश्ताक हमें कराची की सूरत हाल बता रहे हैं। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ से कराची के हालात ख़राब हुए और उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ ना सिर्फ सड़कें बंद हुई बल्कि पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो कशीदगी भी रही, हालात कंट्रोल किए गए। और अब सूरत हाल ये शहर में कि तमाम तर नफरी जो है वो मुख्तलिफ सड़कों पर लगाई गई है, पुलिस के गश्त को बढ़ाया गया है, और ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स की नफरी भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर डिप्लॉयड कर दी गई है। हम इस वक्त माई कराची रोड से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। माई कराची रोड और एमटी खान रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए दोनों ट्रैक जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पुलिस रेंजर्स की नफरी डिप्लॉयड कर दी गई है और कंटेनर्स लगाकर बाकायदा तौर पर रोड को दोनों तरफ से बंद किया गया है। जो ट्रैफिक आए चंडीगढ़ रोड से या फिर ICI ब्रिज से इस जानिब आ रही है, उसे जो है वो टावर की तरफ मोड़ा जा रहा है, जबकि जो बिलावल हाउस की जानिब से बोर्ड बेसन की तरफ ट्रैफिक आ रही है उसे भी जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है क्लिफ्टन की तरफ। इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ किसी भी गैर मुतलका शख्स को या गैर मुतलका गाड़ी को जो है वो यहाँ नहीं आने की इजाज़त है और पुलिस की नफरी बाकायदा तौर पर चेक कर रही है। सवेरे आज जो है वो शाहरा फैसल का जो एक ट्रैक FTC से मेट्रोपोल की जानिब आता है उसे मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया था, लेकिन ट्रैफिक की शदीद मुतासर होने की वजह से जो है वो उसे खोल दिया गया और अब सिचुएशन ये है कि शाहरा फैसल के दोनों ट्रैक खुले हुए हैं। चलिए दैट इज़ बेटर कि शाहरा फैसल के दोनों ट्रैक खुले हों, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा डिटूर्स थे, ऑब्वियसली बहुत सी सड़कें जो थीं वो बंद थीं, लेकिन सोशल मीडिया पे बताया भी जा रहा था ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि कौन सी रोड्स बंद हैं और कौन सी लें। बट इट सीम्स टू बी बेटर नाउ। लाहौर में क्या सूरत हाल रही और अभी है, मियां आबिद हमें बता रहे हैं। जी, लाहौर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, क्योंकि जो फितना और खारिज के दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है, कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन जारी हैं। इसके साथ ही जो हसास मकामात हैं वहाँ पे भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। एक रास्ता जो है वो पुलिस लाइन के इर्द गिर्द जो है वो एक ही सड़क जो है वो बंद कर दी जाती है ताकि वहाँ से गुजर ना सकें, तो दूसरी साइड पर जो है वो दो तरफा ट्रैफिक चलाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला जो है वो यहाँ पर अमरीकी कौंसल खाने का है, जो शिमला पहाड़ी के गिर्द है। इसके एक तरफ एम्प्रेस रोड है, दूसरी तरफ अजर्टन रोड है और तीसरी तरफ पीछे इसके गवर्नर हाउस है और उसके साथ ही माल रोड से मुलिका काफ़ी सड़कें हैं, गरीशाओं को भी रास्ता जाता है। तो ये चारों तरफ से जो है वो कंटेनर यानी डबल कंटेनर लगाकर इस रास्ते को बंद किया गया है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। इसके अलावा दीगर जो हसास मकामात हैं जैसे दाता दरबार है, बादशाही मस्जिद है, इनके इर्द गिर्द जो है ख़ासतौर पर जो सहरी और अफ्तारी का वक्त होता है पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाती है। लेकिन इसके अलावा भी सिक्योरिटी लिए गए हैं, बैरियर लगाकर सड़कों को मुख्तलिफ
मुख्तलिफ शाहराएँ जो साथ मिलती हैं उनको बंद किया जाता है और उसके बाद शहरों के जो है वो दो तरफा ट्रैफिक जो है वो एक सड़क पर रवां दवां रखी जाती है। पीछे जो थे कंटेनर्स वगैरह भी नज़र आ रहे थे मियां आबिद, थैंक यू। अच्छा, इस्लामाबाद में भी ऑब्वियसली आपको पता है बड़े प्रोटेस्ट वगैरह भी हैं और रेड जोन वाला पूरा एरिया वो तो वैसे ही बंद करके रखा ही होता है, लेकिन ऑल रोड्स लीडिंग टू इट हैव बीन क्लोज्ड ऑफ एज वेल। अब से कुछ देर पहले हमारी साथी हैं दुआ मिर्जा, उन्होंने जो विजुअल्स देखे हमसे शेयर कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ होने वाले एहतजाज के बाद इस्लामाबाद की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है, लेकिन इस्लामाबाद में मामूल की ज़िंदगी इस वक्त रवा दवा है। मैं इस वक्त डी चौक पे मौजूद हूँ और डी चौक और रेड जोन को आने वाले तमाम रास्ते इस वक्त खुले हुए हैं। सुबह के औकात में सरीना चौक की तरफ का रास्ता बंद किया गया था, जबकि मार्गला और मैरीहेड से पार्लियामेंट आने वाले रास्ते खुले हुए थे, लेकिन अब तमाम रास्तों को खोल दिया गया है, मगर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। आज इस्लामाबाद पुलिस के साथ रेंजर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं और वो भी सिक्योरिटी का हिस्सा है, जबकि शहर को सेफ सिटी के जरिए भी मॉनिटर किया जा रहा है। शहर के जो आउटर 25 नाके हैं उस पर भी इजाफी पुलिस तैनात कर दी गई है। SSP ऑपरेशन काजी अली रजा के मुताबिक सीनियर अफसरान खुद भी प्रैक्टिकली ग्राउंड में मौजूद है ताकि सिक्योरिटी को मॉनिटर किया जा सके। अब इस्लामाबाद में चूँकि सिक्योरिटी थ्रेट पहले भी था, इसके बाद कल एहतजाज हुआ और आज पार्लियामेंट का सेशन भी है और रमज़ान भी चल रहा है, इसलिए हर पॉइंट पर पुलिस को तैनात किया गया है। इमाम बारगाहों मसाजिद पर भी पुलिस की इजाफी नफरी लगाई गई है और रज़ाकारों के साथ भी लाइजॉन डेवलप किया गया है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने शहर में 144 दफ़ा नाफिज भी की हुई है और इसके मुताबिक कोई भी एहतजाज या लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी है। बहुत शुक्रिया दुआ, और आपने हमें करेक्ट भी कर दिया बिकॉज कल तक तो हमें यही रिपोर्ट्स थी, बल्कि आज सुबह तक भी कि रेड जोन की तरफ हर चीज़ बंद है, बट नाउ यू से एवरीथिंग इज ओपन। लेट्स टेक यू टू पेशावर नाउ, और नादिया सबूही हमारा इंतजार कर रही हैं। नादिया बता रही हैं व्हाट्स द लेटेस्ट ओवर देयर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमरीकी कॉन्सुलेट के सामने, जिससे मुतसिल जो रोड है उसको ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो मजबूरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी पहले से हाई अलर्ट थी, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी की गई थी और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से पब्लिक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मजहबी इबादतगाहें हैं, पब्लिक मकामात हैं या जो सरकारी इमारात हैं, सरकारी दफातर हैं, उनमें सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। और यूँ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर की शहादत के खिलाफ जो मुजाहरे किए जा रहे हैं उसमें एहतियातन सिक्योरिटी के इंतजाम ज्यादा कर दिए गए हैं। ऑलराइट, सो नादिया आपसे लिटरली कुछ देर पहले की सूरत हाल हमें दिखा रही थी, बता रही थी। अभी हम एक ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेते हैं बिल्कुल। एंड टुडे लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट क्रिकेट आल्सो इफ वी गेट टाइम आफ्टर दिस ब्रेक। वी विल। वेलकम बैक टू ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के आखिरी मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से हराकर आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली है। Did you doubt that? They had been winning. It's a great team. इंडिया की फतेह के साथ इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप जो है वो मुकम्मल हो गई है और 4 मार्च को ईडन गार्डन्स कोलकाता में इस इवेंट की हैवी वेट जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने आएंगे। और जनूबी अफ्रीका अब तक इस इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही है और इसके मुकाबले में न्यूजीलैंड ग्रुप स्टेज पर पहले जनूबी अफ्रीका से हारी, हाँ। और उसके बाद सुपर 8 मरहले में इसको इंग्लैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के दरमियान वेखंडे स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। भारत को इस इवेंट में वाहिद शिकस्त जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हुई है। इसके अलावा भारत ने अपने बाकी मैचेस बासानी जीते हैं और इंग्लैंड की टीम ऐसी है कि भारत उसे बासानी हरा भी सकता है। हम भी हरा सकते थे अगर हम थोड़ा स्ट्रेटेजिकली उस दिन खेलते। तो इंग्लैंड का सफ़र इस टूर्नामेंट में बड़ा दिलचस्प रहा है। ग्रुप स्टेज पर एक मौके पर वो बिल्कुल बाहर निकलने वाले थे, लेकिन सुपर 8 मरहले में वो आखिर संभल गए हैं, हाँ, और निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो बिज़ाहिर जी सेमीफाइनल्स जो बड़े दिलचस्प होने वाले हैं और हम नहीं होंगे बीच में, लेकिन जो क्रिकेट लवर्स हैं वो तो क्रिकेट देखते हैं ना। अब हमें आदत सी नहीं हो गई है ICC टूर्नामेंट्स में इन स्टेज तक पहुंच रहे हैं। और अहमद शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई शुक्रिया, बताइएगा इंडिया जनूबी अफ्रीका का नाम तो सभी ले रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें भी ठीक ठाक फॉर्म में ही हैं और पर्टिकुलरली इंग्लैंड ठीक है शुरू में ज़रा डाउटफुल था, लेकिन फिर दे आल्सो कॉट अप। ट्रॉफी जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा किस मुल्क के लग रहे हैं आपको? 2 टीम्स जो सबसे ज़्यादा फेवरेट लग रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर, वो एक तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, वो है साउथ अफ्रीका, जो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप, अच्छी बॉलिंग, अच्छे स्पिनर्स, ऑलराउंडर्स के साथ जा रही है और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है। दूसरी भारत एक अच्छी फॉर्मिडेबल साइड है
जिसकी बैटिंग तो बहुत जबरदस्त है, बॉलिंग थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर इश्यू है, लेकिन एक बहुत जबरदस्त साइड है जो कि अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही, तब भी सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गई है आराम से। तो बेस्ट क्रिकेट जब खेलेगी तब क्या करेगी। तो ये दो साइडें जो है ये बहुत तगड़ी साइड है, एक साउथ अफ्रीका, एक भारत। साउथ अफ्रीका और इंडिया आपने कहा है, वेल साउथ अफ्रीका हैज़ बिन अनबीटन सो फार, तो यस डेफिनेटली चांसेस तो उनके लग रहे हैं। अहमद ये बताएं कि T20 से मुतालिक एक आम राय ये है कि तगड़े बैटर्स और पावर हिटर्स यही जो होते हैं वो मैच विनर्स होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेमीफाइनलिस्ट चारों टीमें अपने बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस पर आगे आई हैं। क्या T20 में बॉलिंग की अहमियत बढ़ गई है? समथिंग हैज शिफ्टेड? में नहीं, जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है टूर्नामेंट्स के अंदर आपको आपकी बॉलिंग जो है ना ज्यादातर टूर्नामेंट्स जितवाती है। बायलैटरल सीरीज जो है उसके अंदर आपकी बॉलिंग थोड़ी बहुत हल्की भी हो तो चल जाती है। बॉलिंग को आप बिल्कुल भी अंडररेट ना करें, बॉलिंग आपको बड़े बड़े वर्ल्ड कप जितवाती है, और जो भी टीम्स जीती हैं जिंदगी में आप देखें जो कप्स जीती हैं उनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी। इस वजह से लोग जो है ना इंडिया का थोड़ा सा इस दफा फाइनल का शेकी है, बिकॉज उनके पास एक बुमराह है जिसपे वो खेल रहे हैं। उसके अलावा भारत की इस दफा बॉलिंग थोड़ी सी हल्की लग रही है, जो कि साउथ अफ्रीका की बहुत जबरदस्त लग रही है इस दफा बॉलिंग है। अच्छा अहमद भाई, जो 4 टीमें यहाँ तक पहुँची हैं, ज़ाहिर है अच्छी टीमें थीं, इनका हक था, बहुत अच्छा खेल भी रही थीं, बहुत महीनों से मुसलसल अच्छा खेल रही थीं। हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि इनकी टीम और हमारी टीम में असल फ़र्क क्या है कि हम यहाँ नहीं पहुँच सके और नहीं पहुँच पा रहे इस टूर्नामेंट्स में इन स्टेजेस तक। वो सिस्टम का फ़र्क है, प्लेयर्स डेवलप करने का फ़र्क है, मेरिट का फ़र्क है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का फर्क है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकियों की टीमों के अंदर 6 ओपनर्स हैं, आप अपनी जरा टीम उठा के तो देखें उसके अंदर ओपनर्स कितने हैं। आपका 1 डाउन भी ओपनर, आपका 4थे नंबर पे खेलने वाला भी ऑर्डर ओपनर, 5वें नंबर पे खेलने वाला भी ओपनर, उस्मान खान 6वें नंबर पे खेलने वाला भी ओपनर ना। सो ऐसे नहीं है, दे लाइक उनको पता है कि किस रोल के लिए उन्होंने मिडिल ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, लोअर मिडिल ऑर्डर में लोअर मिडिल, आपके पास तो ओपनर ही ओपनर भरे हुए हैं। फिर लोगों की फास्ट बॉलिंग देखें ना, कैसे यॉर्कर्स मारती है, आपको बचाती है, कितनी आर्मरी है उनके पास, अच्छे स्लो बॉल। आपके पास फास्ट बॉलर ही इन फॉर्म है ही कोई नहीं अरसे दराज से आपकी टीम में, आप उन्हीं ट्राइड एंड टेस्टेड के साथ आगे चलते जा रहे हैं। तो आप जब तक ये चीजें होती रहेंगी, फिर लीडरशिप का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो आपके सिस्टम जो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है उसमें से भी आप जो है ना अच्छे यहीं छोड़ जाते हैं, फिर जो ले जाते हैं वो वहाँ भी फेवरेटिज्म करते हैं, राइट प्लेइंग 11 नहीं खिलाते, जो अपने फेवरेट है उनको खिलाते हैं, और जैसे ही आप आखिरी मैच में राइट प्लेइंग 11 खिलाते हैं आपको डिफरेंस नजर आता है। तो बड़े सारे मसाइल है, कोई एक हो तो बताएं। दैट्स राइट, मसाइल खैर बहुत हैं, एक एक करके ठीक करेंगे कभी जब टाइम होगा तब बात होगी। वैसे कैन आई जस्ट से हियर, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड कप लेफ्ट एनीमोर। हाँ जाहिर है, मतलब मुझे जैसे क्रिकेट देखने का शौक है तो वो इंटरेस्ट रहता है बरकरार, रहता है बरकरार, लेकिन बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट पाकिस्तान टीम के सफर के साथ खत्म हो जाता है। और दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है भाई, हमारे खिते में बहुत कुछ हो रहा है, तो ये भी एक्चुअली अच्छा। आई वाज आल्सो थिंकिंग, बट आप ना देखें ना, मैं आपको बताता रहूंगा ना, और हम सबको बताते रहेंगे। अभी भी यही हो रहा है कि मैं नहीं देख रही, आप ही मुझे बता रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आपको पता है कि ये 2-4 दिनों में अब ये खत्म भी हो जाएगा वर्ल्ड कप सारा, और उसके बाद टीमों ने जब निकलना होगा, और वही एयरलाइंस जो आजकल नहीं चल रही, दैट इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ तो ज़ाहिर है फ्लाइटें चेंज होंगी और श्रीलंका नहीं बहुत कुछ होना पड़ेगा। वैसे ही कह रहे हैं, अभी तो ये बड़े बिजी हैं यहाँ। हमारे वाले क्या आगे वापस आ गए, वापस कुछ आगे कुछ नहीं आए, जाहिर है इधर उधर हो गए आ रहे हैं ना फिर। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर एंड विल बी बैक। अच्छा जी, अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद वही हुआ जिसका खदशा था। इट वाज अ मंडे, इट वाज द फर्स्ट वर्किंग डे, क्योंकि वीकेंड पे जंग शुरू हुई थी। जंग में कीमती इंसानी जानें तो ज़ाया हो ही रही हैं, लेकिन मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से आलमी मईशत भी बिल्कुल अच्छा
हिल के रह गई है एक्चुअली बिल्कुल। सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं, सोने के भाव, तेल की आलमी कीमतें, दीगर मार्केट्स, हर तरफ नुकसानात रिपोर्ट हो रहे हैं। माशी बेचैनी और गैर यकीनी के बादल जो है वो हर तरफ छाए हुए हैं। नेचुरली आपको पता है एक वैसे ही कहीं कुछ हो रहा, और वी आर टॉकिंग अबाउट गल्फ कंट्रीज, मतलब लिटरली तेल का जो गढ़ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस जंग से सिर्फ जनूबी एशिया नहीं, पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई है। जंग के बाद आज पहले रोज़ जैसे ही स्टॉक मार्केट्स खुली, एक भौचाल सा आ गया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा। मार्केट में तकरीबन 16,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी देखी गई। दुनिया की दीगर मार्केट्स में मंदी रही और बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में तेल और सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि तेल की कीमत $100 तक पहुंच सकती है और अगर ये जंग लंबी चलती है तो दुनिया भर की मईशतों पर मनफी असरात मजीद गहरे होंगे। तो सोना फी तोला इसकी कीमत में 13,300 रुपये का इजाफा हुआ है, जो अब 5,62,000 रुपये से ज़ायद फी तोला की सतह पर पहुँच गया है। हमसाया मुल्क होने के नाते पहले से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी मईशत के लिए आने वाले दिनों में चैलेंजेस मजीद बढ़ सकते हैं। इसी पे जरा बात कर लेते हैं। रियाज एंडी ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज, ऑब्वियसली ये खदशा तो था कि ईरान जंग के बाद पाकिस्तानी मार्केट्स जो हैं उन पर असर नज़र आएगा, और मार्केट्स खुली और वो असर नज़र आ गया। तो एक्सप्लेन करें अब बैकग्राउंड में क्या हुआ, और आज सुबह जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुली तो व्हाट ऑल हैपेंड? यस, ईरान इराक जंग जो है इसका सबसे बड़ा रीज़न था, एंड मार्केट उसकी वजह से डेफिनेटली आज गिरी है। फिर बीच में ये हुआ कि मार्केट का एक रूल है कि जब मार्केट 5% से ज़्यादा गिरती है KSE 30 इंडेक्स, तो फिर मार्केट को बंद किया जाता है 45 मिनट के लिए। तो एक वक्फा है, कूलिंग पीरियड कहलाता है। इस दौरान में पोजीशंस को चेक किया जाता है कि ओवरऑल क्या सूरत हाल है, और अगर ज़रूरत होती है तो कुछ सौदे कटवाए भी जाते हैं। तो ये सिलसिला रहा, और उस दौरान में मार्केट ने रिबाउंड भी किया, तकरीबन 6-7 हज़ार पॉइंट मार्केट वापस भी आई, एंड लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से जो गिरावट का सिलसिला था वो रहा, जो शो कर रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो है नेगेटिव। जंग की सूरत हाल है तो ये रहना भी चाहिए, एंड इसी वजह से मार्केट नीचे आके बंद हुई है। जो क्लोजिंग की है मार्केट ने आज, वो 1,16,000 पॉइंट नीचे बंद हुई है, और तकरीबन 151 में जाकर ये बंद हुई है। तो लास्ट क्लोजिंग 168 में थी, और आज मार्केट बंद हुई है 151 के अंदर। ठीक रियाज, अभी मार्केट ज़ाहिर है माहिरीन क्या देख रहे हैं ये बताइएगा, आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड्स रह सकते हैं? मार्केट और नीचे जाएगी, कुछ बेहतरी आ सकती है? क्या मार्केट मैनेजमेंट भी हालात कंट्रोल करने के लिए अपना कोई प्लान बना रही है? देखें, डेफिनेटली ये जंग की सूरत हाल है, तो जंग का आउटकम क्या होगा उसी के साथ हमारी सूरत हाल भी लिंक है। वाई? बिकॉज हमारी मईशत है इम्पोर्ट बेस। सबसे बड़ी इंपोर्ट हमारी तकरीबन 15-16 अरब डॉलर की तेल की इंपोर्ट है, उसके अंदर LNG भी है, उसके अंदर पेट्रोलियम मसनूआत है, LPG भी आती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपोर्ट है हमारा, और अगर इसकी कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है ना सिर्फ मुल्क की मईशत को, बल्कि जो आपके लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनकी भी कॉस्ट के ऊपर वो डेफिनेटली इम्पैक्ट डालती है। तो यस, ये सूरत हाल तो है। तो जब तक जंग का समा है तो वो ये सूरत हाल तो रहेगी कि मार्केट का सेंटिमेंट ज़रा डल रहेगा। लेकिन ये कि इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं या माहिरीन क्या कहते हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो मार्केट नीचे आई है ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, और इसके अंदर ये बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल जो सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा है, तो जो भी इन्वेस्टर हैं वो अपनी एपेटाइट देख के काम करें। ठीक, अच्छा रियाज भाई ये भी जानना, सोने की कीमत का भी जानना है। बिल्कुल, यही मैं पूछने भी लगी थी, और इसकी ज़रा बैकग्राउंड भी आप इसलिए समझाना, बिकॉज लोग ऑब्वियसली दे आर इंटरेस्टेड। अब ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की हम बात नहीं कर रहे, आलमी सतह पर सोने की कीमत बढ़ रही है, जो कि पहले से ही बढ़ रही थी। तेल की कीमतें बढ़ने का भी बताया जा रहा है। ऑब्वियसली जंग एक खित्ते में ही महदूद और होपफुली रहे, लेकिन असर हर जगह उसका पड़ता है। एक्सप्लेन दिस। तेल की कीमतें तो इसलिए बढ़ रही है कि जो
आबनाए हुर्मुज़ है, यहाँ से 20% तेल दुनिया का जो सप्लाई होता है यौमिया, तकरीबन 2 करोड़ बैरल के करीब है ये रोज़ाना यहाँ से सप्लाई होता है। तो अगर वो नहीं हो रहा तो डेफिनेटली तेल की कीमतें बढ़नी चाहिए। ब्रांड की कीमत $80 तक भी पहुँची है एंड दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। जहाँ तक सोने की बात है तो सोने को तो कहा ही ये जाता है कि ये वॉर करेंसी है। जब भी कहीं पर भी सूरत हाल मखदूश होती है, जंग के ऐसे हालात होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर सेफ़ हेवन के तौर पे बाइंग शुरू होती है। स्टॉक मार्केट यहाँ पे नफ़ा कमाएंगे, वो शेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ से अपने पैसे को निकाल कर कहीं सेफ़ जगह पर पार्क करते हैं। एंड ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। शुक्रिया आपका। एंड दैट इज़ इट, हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह।